السلام علیکم، 7 نیوز کے ساتھ میں ہوں فہیم چودھری اور میں ہوں فرزین نعیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرے اس سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر داخلہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اتنے ہیوی ٹیکسز میں انڈسٹریز کیسے چلیں گی؟ اسلام آباد میں فرسٹ پاکستان اکنامک 2026 کی تقریب سے خطاب، کہا چنوٹ میں دنیا کا بہترین فرنیچر بن رہا ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ کھاتا ہوں بہت، یہ 100 بلین کیا 200 بلین ڈالر کے آپ کو ایکسپورٹ دینے کے لیے، یہ عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے سر، پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے، سب قوم کی آپ کی طرف نظر ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، جس طرح سے آپ نے پاک ایران میں لگے، جس طرح سے فیلڈ مارشل نے یہ جنگ لڑی، اب ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت صحت نے انڈس اسپتال کے درمیان معاہدہ ہوا، عوام کو صحت کی جدید اور معیاری سہولیات کی فراہمی کو ترجیح دی ہے، صحت کے نظام کی بہتری کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اسپتالوں کی حالت بہتر بنائی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کوئی کام ویسے نہیں کر سکتی، پیپرا رول کے مطابق ہم نے وہ ساری RFP بنائی۔ پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا، اس کا بھی پروسیس کیا ہم نے پورا، کنسلٹنٹ بھی خود ہائر نہیں کر دیا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس شاید یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کیا، وہ کوئی اس فیلڈ کا کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے۔ تو اس کنسلٹنٹ نے پوری اس کی اسٹڈیز کی، اور میں کامران صاحب ہیں یہاں پہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری، وہ اب نہیں ہیں ہاسپٹل کی جوائنٹ سیکرٹری، میں ان کا اسپیشلی نام لینا چاہوں گا، انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا، وہ اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں ان کی ساری اس محنت کو، اور ڈیفینیٹلی اس وقت کے سیکرٹری۔ پاکستان امریکہ اقتصادی روابط میں نئی پیش رفت، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور معاشی روابط کے فروغ کے لیے SIFC کی سہولت کاری سے اقدامات جاری ہیں۔ SIFC کی جانب سے امریکی وفد کو بریفنگ، SIFC کی سہولت کاری سے امریکی کاروباری اور نیشنل وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ اس دورے کے دوران SIFC کے زیر اہتمام امریکی وفد نے ایک خصوصی بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے روابط کو مضبوط بنانا ہے۔ بریفنگ میں معزز مہمانوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے پرکشش موقع، سازگار کاروباری ماحول اور ترجیحی شعبوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ SIFC کی جانب سے امریکی سرمایہ کاروں کو توانائی، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر عام شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، جو کہ پاکستان میں عالمی شراکت داروں اور معاشی ترقی کے نئے باب کی عکاسی کرتا ہے۔ Associated with SIFC over the last couple of years or so. So I believe my interaction with them have been very, very good. They are there to assist the investors. And frankly speaking, when we talk about one window operation, this is something we were looking for. And so far that has been successful. We need to work a lot on that to make comfort for our investors. But SIFC is there who is, I believe, is fully committed for that. Patrick Eiber. I'm a Silicon Valley tech entrepreneur, advisor and investor. I was invited to come here to Pakistan and we've been here for the last 2 days and so far it's been amazing how we can work and collaborate. ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ فیصل آباد سیشن کورٹ کے بخشی خانے میں گرفتار ملزمان کو منشیات فروخت کرنے والے 3 پولیس اہلکار گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ہونے والے اہلکاروں میں کانسٹیبل احسان، مجاہد اور فرحان شامل ہیں، جنہوں نے دوران تفتیش عدالت میں پیشی پر آنے والے قیدیوں اور ملزمان کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف جرم کر لیا۔ واقعے کے بعد محکمہ پولیس نے فوری اور سخت کارروائی کرتے ہوئے تینوں نامزد ملزمان اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف 7 نیوز فیصل آباد میاں منور اقبال سے۔ جی میاں منور اقبال، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، فیصل آباد کی سیشن کورٹ کے احاطہ سے 3 پولیس اہلکار جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضہ سے جو ہے منشیات برآمد کی گئی ہے۔ گرفتار پولیس اہلکاروں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے جو عدالتوں میں قیدی پیش ہوتے ہیں ان کو جو منشیات فروخت کرتے تھے، نہ صرف ان کو منشیات فروخت کرتے تھے بلکہ ان کو جو باقی چیزیں لا کر جو ہے وہ بھی دیتے تھے۔ آج جب وہ سیشن کورٹ میں جیسے ہی پولیس اہلکار داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر جو بخشی خانے کا انچارج ہے انہوں نے ان کی مشکوک حرکات کو دیکھتے ہوئے ان کو چیک کیا تو ان کے قبضہ سے جو ہے
भारी मकदार में जो मंशियात है वो बरामद हुई है। इन तीनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। बाद इन तीनों पुलिस एहलकारों को अदालत में पेश किया गया है। अदालत की जानिब से जो है तीनों पुलिस एहलकारों को जो है जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद का यही कहना है कि मंशियात फरोख्त पर जो है फैसलाबाद में किसी किस्म की रायत जो है वो नहीं बख्शी जाएगी, चाहे कोई आम शहरी हो या पुलिस एहलकार हो, जिसके कब्जा से मंशियात जो है वो बरामद होगी उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, एहलकारों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया मियां मुनव्वर इकबाल, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। एंटी करप्शन और मजिस्ट्रेट का छापा, नायब तहसीलदार सरफराज चीमा 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। समड़ियाल में महकमा एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार सरफराज चीमा को अपने ही ऑफिस से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिम के कब्जे से निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें रिश्वत के तौर पर दिया जा रहा था। कार्रवाई के बाद मुलजिम नायब तहसीलदार के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना एंटी करप्शन सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन और मजिस्ट्रेट का छापा नायब तहसीलदार सरफराज चीमा 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। समड़ियाल में महकमा एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार सरफराज चीमा को अपने ही ऑफिस में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिम के कब्जे से निशानज़दा नोट भी बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें रिश्वत पर दिया जा रहा था। अभी आपको बताएं कि कंगनपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, बदनाम ज़माना मुनशियात अरशद राशिद उर्फ कोडू गिरफ्तार करके 10 किलोग्राम से ज़ायद चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 10 किलोग्राम से ज़ायद आला मेयार की चर्स बरामद की गई, जिससे इलाके में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, ताकि दीगर करिंदों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सियालकोट में सीनियर मेंबर वजीर आला इंस्पेक्शन टीम साकिब अली का दौरा, नालों की सफाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल से निमटने का इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान नालों की सफाई की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए साकिब अली ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मौजूदा हालात का मुकम्मल जायजा लेने की सख्त हदायत की। उन्होंने सख्त कार्रवाई के अमल में लाए जाने की हिदायत भी की। तमाम अदारे मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली यकीनी बनाएं। इस मौका पर जिला भर में खतरनाक इमारतों का दोबारा सर्वे मुकम्मल करने और मवेशियों के लिए चारे की फराहमी की मौसर इंतजामात बरकरार रखने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मुश्ताक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने टंडोजाम हैदराबाद में जदीद ज़री तहकीकी लेबार्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने हैदराबाद में जदीद ज़री तहकीक लेबार्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में महकमा ज़राअत के आला हुक्काम, ज़री साइंसदानों और काश्तकारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत को महकमा ज़री तहकीक की कारकर्दगी और जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सिंध में ज़री तहकीक को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए नई लेबार्ट्रीज कायम की गई हैं, जबकि गंदम की ज्यादा पैदावार देने वाली नई इकसाम तैयार करने का मंसूबा भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्पीड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मौसमी तब्दीलियों से हम आहंग गंदम की नई इकसाम तैयार की जाएंगी। जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहाँ पे हमने 2 लैब जो हैं उनको इनॉग्रेट किया। एक जो है वो स्पीड ब्रीडिंग के लिए जो लैब है और उसकी इफ्तिताह हमने की, और ख़ास तौर पे उसके बाद जो एक डिजीज़ ख़ास तौर पे हमें बताया गया कि पैनामा डिजीज़ जो कि बनाना क्रॉप में होती है, फ्रूट में, तो उसको भी हमने जो है अपने रिसर्च सेंटर में एक लैब की इनॉग्रेशन की, जिसमें हम जो भी ऐसे कुछ डिजीज़ के मसले होते हैं तो उनको उनकी मैनेजमेंट के लिए उनको कैसे डील करना चाहिए।
सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि केले में पाई जाने वाली पानामा बीमारी पर काबू पाने के लिए भी जदीद तहकीकी मंसूबे का आगाज किया गया है। उनका कहना था कि काश्तकारों की आमदनी में इजाफा और ज़रूरी पैदावार बेहतर बनाने के लिए तहकीक को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध ज़रूरी तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। कैमरा टीम के साथ झांसे वली कातियार, ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ हैदराबाद। उधर हेडमराला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही नानो रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मी अमजद। जी अमजद, क्या सूरत हाल है वहाँ की? हाँ जी बिल्कुल जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही इशा खुर्दो नोश की चीज़ों में इजाफा हो गया। और अगर हम बात करें रोटी और नान की, और नान जो कि पहले 20 रुपये में फरोख्त हो रहा था, आज ये 25 रुपये में फरोख्त हो रहा है। देसी रोटी जो पहले 14 रुपये की थी, आज ये 20 रुपये में फरोख्त हो रही है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, मैं इनसे जानता हूँ कि वो इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी बताएं जी। जी सर देखें, जब आटे की कीमत थी तकरीबन 1200 रुपया, तो हम 14 रुपये की रोटी फरोख्त कर रहे थे। लेकिन आज जो आटे की कीमत है वो 2100 रुपये है, तो हम कैसे 14 रुपये में रोटी फरोख्त कर सकते हैं? जो रेट पहले था और जो रेट आटे का आज है, उस हवाले से तो रोटी जो है वो 28 रुपये की होनी चाहिए। डबल रेट आटे का और रोटी का भी होना चाहिए। लेकिन हम फिल वक्त जो है वो अपना 20 रुपये की देसी रोटी फरोख्त कर रहे हैं। जब भी हमें आटा पहले रेट पे मिलेगा तो हम 15 रुपये की रोटी फरोख्त करें। हाँ बिल्कुल जी, दुकानदार का आपने सुना, दुकानदार का यही कहना है कि जब हमें आटा पीछे से महंगा मिलेगा तो हम रोटी भी महंगी बेचेंगे, और जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम रोटी की कीमत भी सस्ते दामों फरोख्त करेंगे। बहुत शुक्रिया मियां अमजद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, नवाबशाह में ए सेक्शन थाने की हदूद में लड़की से मुबैना ज्यादती की कोशिश, वर्सा का शफाफ तहकीकात इंसाफ का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ सैयद गुलाम नबी शाह से। जी गुलाम नबी, अपडेट कीजिएगा। नवाबशाह के सेक्शन थाने में मौजूद है। यहाँ पर एक लड़की जो है उसके साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनके हवाले से इनका क्या कहना है। ये बेइंसाफी की, इनको मारा है, कूटा है, खींच के कपड़े उतारे गए। बस शुक्र है मैं आ गई, मैंने देखा, जो मुझे पता लग गया, फिर मैं भी लड़ी उन्हों से। फिर मेरा बेटा छोटा है, उसको मैंने बोला मुझे जाके बाप को बुला के आ। अल्लाह ने मुझे जल्दी उधर भेज दिया फरिश्ता करके। ज्यादती की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने ज्यादा किया वो लड़का भाग गया, बाकी उनके बाप लेके आए हैं। बाप लेके आए। इस सिफत इंसान है और दरिंदों ने इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा, ज्यादती का निशाना बनाए। इनका यही कहना है कि पुलिस ने भी अभी तक जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं किया। इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर जवाबदारों को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद गुलाम नबी शाह, 7 न्यूज़ नवाबशाह। सादिकाबाद अहमदपुर लम्मा में कातिलों की गिरफ्तारी न होने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ शहबाज मेरानी से। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके थाना अहमदपुर लम्मा की हदूद है दिनुशा बस्ती नोनारी, जहाँ पर इलाका मकीन जो है बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज हैं। इनका क्या कहना है, हम इनसे पूछेंगे आप सरापा एहतजाज क्यों हैं, कोई कत्ल का मामला बता रहे हैं, ये कब कत्ल हुआ है, तो पुलिस की क्या स्टेटमेंट है, कोई FIR हुई है नहीं हुई, तो क्या कहेंगे? जी, ये 28 मई 2026 को दिन के 12:30 बजे का वक़ूआ है। मेरे वालिद साहब को अशरफ शाह नामी शख्स ने दिन के 12:30 बजे कत्ल कर दिया गया था बेदर्दी से, और हमने उस वक्त फिलफौर FIR दर्ज करवाई थी थाना अहमदपुर लम्मा में, जो इस FIR को 3 माह हो चुके हैं। फिर अभी इस वक्त तक कातिल और उसके सहूलतकार घूम रहे हैं। मेरा हुकूमत पंजाब ख़ास तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से और RPO भावलपुर साहब से और DPO इरफान समूह साहब से मेरा यही मुतालबा है कि मेरे वालिद साहब के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। कि हुकूमत पंजाब से ख़ास तौर पर मुतालबा यह है कि अब्दुल अजीज शेख के कातिलों को जितना हो सके जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा सुना, ये अहमदपुर लम्मा दिनुशा बस्ती नोनारी के मनाज़िर थे, जहाँ पर इलाका मकीन बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि जो मकामी पुलिस है उनकी स्टेटमेंट है कि हमें जो है वो डाटा नहीं मिल रहा, कातिल जो है ताहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। का कहना था कि CM साहबा और IG पंजाब RPO भावलपुर DPO रहमिया खान से नोटिस लेने का जो वो मुतालबा किया। इनका कहना है कि हमारे कातिलों को जो वो फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकपतन में नए अस्पताल की तमीर में दीगर मसाइल के हल के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैदान में आ गए हैं। मज़ीद तफसीलात यासिर अली खान की इस रिपोर्ट में।
पाक पतन के मसाइल को हल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी व मारूफ बिजनेसमैन चौधरी सब्तान अकरम अराई की काविश से बड़े मुशावरती इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को दरपेश मसाइल को हुकूमती सतह पर उजागर करने और मुमकिन हल पर तजावीज पेश की गयी। कोशिश कर रहे हैं कि सारे मिल के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर पाक पतन की तरक्की के लिए काम कर सकें, मशावरत कर सकें। इंशाअल्लाह ताला सबके साथ मिलके और नून लीग की सरबराही में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तकरीब में अरकान कौमी व सूबाई असम्बली मियां अहमद रजा मानेका, चौधरी जवेद अहमद समेत मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ समाजी शख्सियत मियां अली इमरान उतियाना ने इस इकदाम को शहर के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि असी पाक पतन की तरक्की वास्ते, इनकी एजुकेशन वास्ते, इनके हॉस्पिटल वास्ते, इनकी सड़कों वास्ते, इनका जिहड़ा बाईपास है, इनके सिलसिले च आज इकट्ठे होने का इको ही मकसद है कि पाक पतन की तरक्की की जाए। इजलास में अयादा किया गया कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कारकुनान और शहरियों के साथ मिलकर इकदाम उठाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ यासर अली खान, 7 न्यूज़, पाक पतन। उधर लाहौर में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, पुलिस की फौरी कार्रवाई। तर्जमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक शादबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतून को हरासा करने वाला मुलजिम उस्मान गिरफ्तार कर लिया, जबकि 12 साल बच्ची से नजेबा हरकत करने वाला मुलजिम अशरफ को भी दबोच लिया। इसी तरह मुनावा के इलाके में खतून से नजेबा हरकत करने वाला मुलजिम वकास को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रेस कोर्स पुलिस ने कमसिन बच्चे से बदफेली की कोशिश में मुलविस मुलजिम अनवर को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। लाहौर भगवानपुरा में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर DC लाहौर और दीगर इंतजामी अफसरान मौके पर पहुंच गए। DC और दीगर इंतजामी अफसरान ने 27 घंटे तक इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जख्मियों की बेहतरीन इलाज के लिए खसूसी हिदायत जारी। रेलवे लाइन अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आने वाला 55 साला शख्स जाँ बहक। सरगोदा की तहसील बेहरा के इलाके चक सईदा रोड पर रेलवे लाइन अबूर करने वाला 55 साला शख्स तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अमीर के नाम से हुई, जो बहेरा का रिहायशी है। डिप्टी कमिश्नर और DPO और सलान जाहिद का ननकाना सिटी में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस रूट्स का तफसीली दौरा। चेहलम के रूट पर जारी तरक्याती कामों, सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुतल्लिका अफसरान और महकमों को जुलूस रूट्स पर तमाम ज़रूरी इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई, जबकि DPO और सलान जाहिद ने कहा इंतजामात के हवाले से तमाम मुतल्लिका अदारे हाई अलर्ट हैं। चेहलम के जुलूस के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, अभी कुछ हादसात की खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोस्टर और रिक्शे में तसादुम, 16 साला नौजवान जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। विहाड़ी में अड्डा पक्खी मोड़ के करीब तेज रफ्तार कोस्टर और रिक्शा में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 16 साला नौजवान जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा विहाड़ी से बुरेवाला जाने वाली कोस्टर के रिक्शे से टकराने के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को DH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बुरेवाला कचहरी के करीब पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल समेत 2 अफराद कत्ल। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों मकतूल की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़ा दरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे रही है, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हरिपुर और अटक पुलिस और CCD का मुश्तरका ऑपरेशन दहशतगर्दी और अगवा समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब खतरनाक दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर 2 घंटे से जायद फायरिंग की, जिसके जवाब में की जाने वाली कार्रवाई में मुलजिम मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका वालिद खालिद महमूद अपने बेटे आसिम की फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। इस दौरान मुलजिम आसिम ने अपने एक और साथी समेत मौके से फरार होने में कामयाब हो गया।
साहब शबीउल्लाह खान उन्होंने पूरा अट्टा को सुकून ला दिया है। अदा कर रहे हैं, अल्लाह आप तमाम को भी जुज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक कांस्टेबल से लेकर, अगर इसमें हमारी फीमेल कांस्टेबल थी, हमारे मेल कांस्टेबल थे, हमारे RRF के यूनिट थे, हमारे ATS के यूनिट थे, हमारे इलीट के यूनिट थे, हमारे ड्राइवर थे, हमारे गनर्स थे, हमारे कांस्टेबल। दुबई में डन्यूब प्रॉपर्टीज़ का आइंदा 12 माह के दौरान 11 रिहायशी मनसूबे मुकम्मल करके हवाले करने का ऐलान। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में नुमाया मकाम रखने वाली कंपनी डन्यूब प्रॉपर्टीज़ ने आइंदा 1 साल के दौरान अपने 11 बड़े मनसूबे मुकम्मल करके सार्फिन के हवाले करने का ऐलान कर दिया। ये इक़दाम कंपनी की तारीख में मनसूबों की बार वक्त या वक्त से पहले तकमील के हवाले से एक अहम तरीन संग मील की हैसियत रखता है। इससे दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में बार वक्त प्रोजेक्ट्स की हवालगी के हवाले से कंपनी के अज़म मज़ीद मजबूत होता है, जिससे सरमायाकारों और ख़रीदारों का इत्मीनान भी बढ़ेगा। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेर सदारत बैनुल तहसील बैडमिंटन टूर्नामेंट और ताइक्वांडो नुमाइशी शो का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ मतलूब महार की रिपोर्ट में। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेर सदारत बैन तहसील बैडमिंटन टूर्नामेंट और ताइक्वांडो नुमाइशी शो MTS के मेज़बान इमरान चौहान की शिरकत नुमायां रही। महकमा खेल बहावलनगर के ज़ेर एहतमाम जिम्नेजियम हैदर स्टेडियम बहावलनगर में बैन तहसील बैडमिंटन टूर्नामेंट और ताइक्वांडो नुमाइशी शो 2026 शानदार अंदाज में मुनक्किद हुआ। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मिसिज उज़मा बशीर ने इंतज़ामात की निगरानी की। इस मौका पर MTS के मारूफ मेज़बान इमरान चौहान भी शरीक हुए, जिन्होंने अपनी भरपूर मौजूदगी और पेशावराना अंदाज से तकरीब को मज़ीद यादगार बना दिया। इमरान चौहान मकामी शख्सियात, सरकारी तकरीबात और अवामी सरगर्मियों को मुअस्सर अंदाज में उजागर करने में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी बदौलत बहावलनगर की मुस्बत सरगर्मियों को वसी सतह पर पजीराई मिल रही है। शुरका ने डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की नौजवानों में खेलों के फ़रोग के लिए काविशों को सराहा, जबकि MTS के प्लेटफार्म और मेज़बान इमरान चौहान की मुस्बत मीडिया नुमाइंदगी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। जी, सक्खर के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बुनियादी तिब्बी सहूलियात का शदीद फकदान, ना एक्सरे की मशीन फाल है और ना ही अद्वियात की दस्तियाबी। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ अब्दुल हमीद दल। जी अब्दुल हमीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर के बड़े सिविल अस्पताल में, जहाँ पे फुकदानों का बड़ा फुकदान है। न दवाइयाँ मरीजों को मिल रही है, न कोई बिजली का सिस्टम है, न कोई जो एक्सरे बड़े वो सहूलत है। मुझे 4 घंटा हो गया है, मैं इधर बैठा हूँ अपनी अम्मी के साथ। पर्ची बंदर मैंने दिए एक्सरे में, उधर सिफारशी काम चल रहा है और बिजली भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, वो दवाई बाहर की देता है, अंदर की दवा हमें मिलती नहीं है। इसीलिए हम MS को, वज़ीर आला सिंध को अपील करे, खुदारा हमारे ऊपर रहम करो। काम चल रहा है, कोई MNA का बेटा आ रहा है, कोई वडेरे का बेटा आ रहा है, उसको अंदर की दवा दे रहा है। जो मजदूर बंदा है वो कर, हम गरीब कहाँ जाएंगे? अगर हमारी इधर सहूलत नहीं मिलेगी तो मुजाहरा करेंगे MS के खिलाफ और इस अस्पताल के खिलाफ। कोई काम नहीं है। हमने आए हुए मरीजों का मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि हम गरीब, जो हमारे सहारा है सिविल अस्पताल, अगर हमारे पास इतनी बजट होती तो हम प्राइवेट में जाते, लेकिन हम इधर भी जलीलो पार हो रहे हैं। न कोई एक्सरे की सहूलत मौजूद है, न कोई दवा, हमें दवाई लिखे वो बाहर से हमें मंगवानी पड़ती है। उन्होंने सक्खर इंतज़ामिया और MS से मुतालबा किया है, खुदारा जो गरीब दूर दराज से मरीज इसी आस पर आ रहे हैं कि हम सिविल अस्पताल जाके अपना इलाज कराएंगे, लेकिन इधर कोई सहूलत न होने की वजह से इधर सिविल अस्पताल में पार हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिविल अस्पताल के जो इंतज़ाम है उनको देखा जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद दल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान मोटरवे पुलिस और LEBT हस्पताल के इश्तराक से ड्राइवर्स के लिए मुफ्त आई स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल की निगरानी में लगाए गए इस कैंप के दौरान मुसाफिर गाड़ियों ट्रकों के ड्राइवर्स की बेनाई, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का फ्री मुआयना किया गया। इस मौके पर माहिरीन की जानिब से ड्राइवर्स को आंखों के अमराज से मुतल्लिक मुफीद तिब्बी मशवरे दिए गए, जबकि ज़रूरतमंद अफराद को मौके पर मुफ्त अद्वियात और ऐनक भी फराहम की गई।
नाजरीन, सखर का तारीखी घंटाघर मुबैना तौर पर गैर कानूनी पार्किंग, तजावुजात और बदतरीन ट्रैफिक जाम की नज़र, जबकि मुतल्लिका अदारे खामोश तमाशाई दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ अब्दुल हमीद दल से। जी अब्दुल हमीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सख्त में मौजूद हूँ घंटाघर के मशहूर शाहरा पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं तजावुज़ की भरमार पर असिस्टेंट कमिश्नर दावा तो बड़ा करती है गरीबों के ऊपर, रेडियो के ऊपर, लेकिन जो मेन घंटाघर है खुद इंतजामिया उसके ऊपर, आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि सारा घंटाघर गाड़ियों से भरा पड़ा है, पार्किंग से आप देख सकते हैं कोई रास्ता नहीं है जो बंदा गुजर सके। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। सख्त इंतजामिया जो है गाय बगाए जो है वो ज़रूर निकलती है सड़कों के ऊपर और तजावुज़ात हटाने की कोशिश की जाती है, मगर वो मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होता, वक्ती बुनियाद के ऊपर वक्ती तौर पे होता है और वो उसके बाद जो है दोबारा से वही तजावुज़ात उल्टी सीधी पार्किंग की शुरू हो जाती है। तो हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि इस मसले को सही तरीके से मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाए ताकि शहरियों को आसानी हो सके, ताजरों को अपने कारोबार करने में आसानी। ये है कि यहाँ पर अगर सही तरीके से पार्किंग की जाए तो इतना मसला नहीं होता, मगर यहाँ पर उल्टी सीधी पार्किंग हो जाती है। पार्किंग माफिया यहाँ पर एक्टिव है, वो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब ज़िले इंतजामिया को देखना चाहिए और इसको काबू करना चाहिए। जी आपने शहरी का मौक़िफ़ सुना, उनका ये कहना ज़िले इंतजामिया के जो घंटाघर तजावुज़ की भरमार पे जो गैर कानूनी पार्किंग लगी पड़ी है उनको हटाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर को ये विजिट करना चाहिए कि अगर ये घंटाघर पे इंतजामिया खुद ये शहरियों ने सख्त इंतजाम मुतालबा खुदारा घंटाघर को देखा जाए और जो गैर कानूनी पार्किंग है उनको हटाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़, क्योंकि 7 है सच के साथ।